لیکن جب وہی بچہ اس ماں کے بطن سے پیٹ سے جب باہر نکل کے دنیا میں آنکھیں کھولتا، بڑا ہوتے جاتا بچہ، جب اس کو عقل آتی، جب وہ ہوش میں آتا، اب دنیا کی زندگی دیکھتا، پیچھے جو چلا گیا تھا بھول جاتا، اب اس کو دنیا اچھے لگنے لگتی، دنیا کی عائش، دنیا کی عشرت، دنیا کی زینت، دنیا میں مست و مگن ہو جاتا۔ اس کو کبھی وہ جنگل دکھتا، اس کو کبھی وہ پیڑ دکھتا، اس کو کبھی یہ دریا دکھتی، وہ دریا میں موجیں، وہ روانگی اس کو محسوس ہوتی، وہ بیوی کا لطف دکھتا، وہ بچوں کی محبت دکھتی، وہ ماں کی ممتا دکھتی، وہ باپ کا سر پر سایہ دکھتا، وہ بھائیوں کی بھائی چارگی دکھتی، وہ رشتہ داروں کی رشتہ داری دکھتی، وہ دوستوں کے ساتھ چبوترے پہ بیٹھنا اس کو یاد آتا۔ اب وہ سمجھتا کہ یہی اچھی چیز ہے۔ اب اس کو نہیں معلوم کہ اس کے بعد بھی ایک ایسا سٹیج ہے، اس کو وہ بھی دیکھنا ہے، لیکن اس کے سامنے وہ ظاہر نہیں ہوا، آخرت اس کے سامنے دکھی نہیں کہ آخرت میں ایسا ایسا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھا، اس کو سب کچھ سمجھتا تھا، اب دنیا میں آ گیا، دنیا بھلی لگی، اب اس کو یہاں سے جانے کا دل نہیں بولتا، لیکن پھر بھی ماں کے پیٹ سے نکلا وہ، اب دنیا میں بھی آیا، اب دنیا سے جانا دل نہیں بولتا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ دنیا کی زینت کو، اس کے لبادے کو انسان اوڑھ لیا، اب وہ لبادہ ہٹیں گا تو آخرت معلوم ہوگی، اب وہ لبادہ ہٹنا کیسا؟ وہ حکم پہ، وہ امانت کے پاس لوٹنا پڑتا کہ نہیں، میرے کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہ عبادت میں، وہ اللہ کی معرفت میں، وہ دنیا کی زینت کا اور دل کے اوپر کا جو پردہ ہے وہ جب اٹھتا تو پھر آخرت کا مزہ آتا، پھر آخرت کے لیے عبادت کرتا کہ ہاں وہ جانا ہے، وہ بہتر ہو جائے، کیونکہ اس کا لطف اس کو محسوس ہوتا۔ اگر لبادہ نہیں اوڑا، دنیا کا ظاہری لبادہ اٹھایا نہیں، تو پھر آخرت کا لطف نہیں ملتا، جب لطف نہیں ملا تو وہاں کا جو مزہ جنت کی شکل میں ہے وہ اس کو میسر نہیں آتا۔ اب دنیا میں پڑا ہوا ہے، دنیا میں ڈوبا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، اب اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ دنیا کی جو زندگی ہے جو بندہ گزار رہا ہے، بندہ چبوتروں پر بیٹھا ہوا ہے، بندہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ، اپنے ہم عمر کے ساتھ گپے لڑاتا بیٹھا ہوا ہے، بندہ بازار میں بیٹھ کر کاروبار کر رہا ہے، بندہ اپنے رشتہ داروں میں رات میں 12 اور 1 بجے تک تقریر کر رہا ہے، بندہ فلاں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا تجربہ، اپنی ذہانت اور اپنا علم پیش کر رہا ہے، آپس میں گفتگو کر رہا ہے، اس کو اللہ کی عبادت یاد نہیں آتی، اس کو آخرت کا مزہ، اس کے اندر اس کی لچک، اس کی مٹھاس نہیں آتی۔ میٹھا سامنے رکھا ہو، کوئی دیکھ کر نہیں بولتا کہ ہاں یہ بڑا ٹیسٹ ہے، اس کا مزہ میں محسوس کر لیا، نہیں، وہ میٹھے کو منہ میں لینا پڑتا، لے کر اس کو منہ میں بولنا پڑتا، جب بھلا دیتا تو اب محسوس ہوتا کہ ہاں میٹھا بہت زیادہ میٹھا ہے، نہ میٹھا کم میٹھا ہے۔ بریانی سامنے مشخاب میں رکھی جائے تستری میں، دیکھا تو بولتا نہیں، اچھی چونی وہ صاحب، دیکھنے میں تو اچھی سواری گئی ہے، اچھا مسالہ وغیرہ بھی دکھ رہا ہے، لیکن اس کو اصل حیثیت میں جیسا قبول کرنا ہے نہیں قبول کرتا، اس کے لیے نوالا بنانا پڑتا، منہ میں ڈالنا پڑتا، چبا کر دیکھنا پڑتا کہ مرچی زیادہ ہو گئی نہیں مسالے بڑھ گئے، ٹیسٹ کیسا ہے، آپ بولتا کہ مسا برابر ہے، تو عزیزان محترم اس کو قبول کرنا پڑتا۔ اب اس کے بعد اللہ آواز دیتا، کلام پاک میں وہ آیت موجیں مارتی ہوئی اس کے کانوں میں آتی، بندہ گناہگار ہونے کی صورت میں اس آیت شریفہ کا بیان اس کے کانوں میں اترتا نہیں، قرآن بولتا، اللہ پیچھے سے آواز لگاتا آسمانوں سے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ اے بندے، تو دنیا کی زندگی میں ڈوبا ہوا ہے، تو دنیا کی زندگی میں مست و مگن ہے، تجھے اپنی بیوی اچھی لگ گئی، بیوی کے ساتھ بات کرنے لگ گیا، بیٹوں کی محبت میں ڈوب گیا، بندے تو رشتہ داروں میں دوستوں میں بڑھ گیا، لیکن بندے جو دنیا تجھے اچھی دکھ رہی ہے، آخرت اور دنیا کو جب ترازو میں تولا جائے، بالآخرتی، آخرت کو جب تولا جائے دنیا کے مقابل میں، تو آخرت کے مقابل میں دنیا کچھ بھی نہیں سوائے تماشا اور کھیل گاہ کے، الا لعب ولا، تماشے کے سوائے دنیا کچھ بھی نہیں۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اگر ایک متقی بندہ ہے، اللہ کو پانے والا بندہ ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اس بندے کے لیے آخرت سب سے بڑھ کر ہے، افلا تعقلون، اگر وہ بندہ عقل رکھتا ہے۔ ایک دوسرے کلام میں اللہ فرماتا ہے، بندوں سے ناراض ہو کر جو بندے دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم آخرت کے مقابل میں دنیا کی چھوٹی نعمتوں کو دیکھ کر دنیا سے راضی ہو گئے؟ دنیا تمہیں کو اتنی اچھی لگی
याद रखो दुनिया कुछ भी नहीं, बिल आखिरत इल्ला कलील, फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील। छोटी छोटी दुनिया की जीनत को देख के तो दुनिया से राजी हो गया, लेकिन बंदे याद रख, आखिरत के मुकाबिल में जो दुनिया का साजो सामान, दुनिया की जो जीनत तुझे दिख रही है, ये कुछ भी नहीं, छोटा सा हिस्सा है। इल्ला कलील, इतना छोटा सा कि उसकी कोई हद नहीं। आखिरत एक बहुत बड़ी नेमत है, आखिरत एक बहुत बड़ी जीनत है, दुनिया कुछ भी नहीं है, अल्लाह फरमा रहा है। उसके बाद अल्लाह एक दूसरे आयत शरीफा में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना वरज़ू बिल हयातिद दुनिया। ऐ बंदे तू दुनिया में डूब गया, दुनिया तेको उतनी अच्छी लग गई। अब अल्लाह अपनी तरफ बताता है उस बंदे के लिए, कहता है कि मेरे से एक वादा करके आया था ना, तू रूह था, तुझे तेरा पुतला बनाया नहीं था, दुनिया में नहीं भेजा, लेकिन सबसे पहले जब तेरी असल रूह बन गई तो तू एक वादा करा था मेरे से, याद नहीं है तेको वो वादा, लेकिन तू दुनिया में आकर वो वादा भूल के दुनिया में डूब गया। कुरान पढ़, जो आयत हमने हबीब पर नाजिल फरमाई, शायद कि तेको वो वादा याद आ जाए, शायद कि हमारी मुलाकात तेरे जहन में आ जाए। अल्लाह कहता है कि इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, बंदे तू दुनिया में जिंदगी गुजारना कैसा भी गुजारना होगा, लेकिन याद रख, यकीनन जो लोग दुनिया में रहकर अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते कि नहीं मेरे को अल्लाह से नहीं मिलना है, मेरे को दुनिया अच्छी है, अगर हमसे मुलाकात की दुनिया में रहकर तू उम्मीद नहीं करेगा, वरज़ू बिल हयातिद दुनिया, और दुनिया की जिंदगी में अगर तू राजी हो जाएगा कि दुनिया की जिंदगी अच्छी है, साथ आखिरत को याद नहीं करेगा दुनिया में रहकर, तुमअन्नु बिहा, और दुनिया में रहकर उसी से इत्मीनान हासिल कर लेगा, यही अच्छी है कहकर जिंदगी गुजार लेगा, तो अल्लाह ने कहा ऐसे बंदों का ठिकाना उलाइका मअवाहुमुन नार बिमा कानू यक्सिबून। अगर दुनिया में रहकर हमारी उम्मीद नहीं करता कि अल्लाह से मुलाकात करना है, और दुनिया में रहकर दुनिया से राजी हो जाता, इसी में अपने वक्त को सरफ कर देता और इसी के अंदर मुतमईन हो जाता, खुश हो जाता, तो ऐसे ही लोगों का ठिकाना आखिरत में जहन्नम होगा, वो जहन्नम में तुझे जलना पड़ेगा। और अल्लाह ने कहा कि अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे लिए यही मामला होगा, और इतना बदतरीन ठिकाना होगा कि तू उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। अजीजा ने मोहतरम एक वाकया सुनाकर देखो, अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम होते, उनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता, सगीरा गुनाह भी उनसे नहीं हो सकता। अल्लाह ने कहा उलाइका हुमुल मासूमीन, वो तमाम के तमाम नबी जो है मासूम है, उनसे कोई गुनाह नहीं होता। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, 4 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं थी, बीवी मरियम के हुजरे में देखे, वो जहां पर इबादत करती थी बेमौसम फल आते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा, आपके खालू थे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हुजरे में देखे बेमौसम फल, गर्मी के फल सर्दी में दिखते थे, सर्दी में आने वाले फल गर्मी में दिखते थे। परेशान होकर पूछे बीबी मरियम, तुम्हारे घर में बेमौसम फल कहां से आते हैं? वो कहती है कि वो जन्नत से अल्लाह ताला मेरे लिए उतारता है, बेमौसम फल देखता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कौम में बड़े नामवर शख्स थे, काबतुल्लाह की हिफाजत में वो तमाम मामलात देखते थे, लोग उनको जो है अपना सरदार मानते थे। अब उनको उनके लिए कोई खलीफा नहीं था, उनकी औलाद नहीं थी। वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के घर बेमौसम फल देखे तो फौरी दुआ मांगे कि मौला बेमौसम मरियम को तू फल दे रहा, मौला मेरे को भी औलाद दे। तो वो दुआ मांगना था, उनकी तड़प अल्लाह को इस कदर अच्छी लगी कि अल्लाह ने कहा कि अब ज़करिया हम तुम्हें यहया देंगे। अल्लाह ताला हजरत यहया अलैहिस्सलाम को उनकी पुश्त से तवल्लुद फरमाया, हजरत यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अजीजा ने मोहतरम, अल्लाह उनको भी नबी बनाया था, वो भी मासूम थे, उनसे भी कोई गुनाह नहीं होता था, लेकिन ऐसा उनके अंदर खौफ और ऐसी खशियत थी कि छोटे बच्चे थे, बड़े भी नहीं हुए थे, जब भी उनके सामने अल्लाह के कलाम में वो आयतें जो गुनाहगार बंदों को अजाब देने के लिए नाजिल हुई, जैसा कि अब मैं पढ़ा था आपके सामने, उलाइका मअवाहुमुन नार बिमा कानू यक्सिबून, यही लोग होंगे जो दुनिया में अल्लाह की उम्मीद भी नहीं रखते, दुनिया से राजी भी हो गए और इसी में खुश है, तो ऐसे लोगों के लिए बरोज महशर जहन्नम होगा, उनका ठिकाना होगा जो दुनिया में रहकर कमाते थे। तो अगर ऐसी आयतें वो सुन लेते तो डर जाते और अल्लाह की पनाह बल्कि भाग जाते थे जंगलों में। तो जब भी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कौम में उतर के स्टेज पे चढ़ के जब खिताब करना होता, पब्लिक बहुत होती थी,
दाएं देखते थे, बाएं देखते थे, कहीं यहया तो नहीं है। अगर वो रहे दिख गए तो वो आयतों को पेश नहीं करके जो अच्छी आयत, मतलब जो बंदों के लिए बेहतर होती, जिससे यहया घबराते नहीं, वो आयतें पेश करके लोगों को नसीहत करते थे। इधर देखे, सामने देखे, फिर बाएं देखे, बेटा नहीं दिखा, उसके बाद अगर नहीं दिखा तो वो दोज़ख की आयतें, जो अजाब की आयतें हैं, वो पेश करते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, हजरत यहया अलैहिस्सलाम अब जवान हो गए, कसीर हुजूम आता था हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की वाद और आपकी नसीहत में। अब आप मिंबर पर चढ़े, दाएं देखे यहया है कि नहीं मेरा बच्चा, बाएं देखे यहया है नहीं है, देखे नहीं दिखे, लोगों में भी नहीं दिखे, कसीर हुजूम था। अब सोच लिए कि हाँ वो अजाब वाली आयतें लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि उतने बड़े हुजूम में यहया अलैहिस्सलाम भी है। आप क्या किए, चादर को अपने ऊपर ओढ़ लिए और लोगों में जाकर बैठ गए वाद नसीहत सुनने के लिए। आजिज़ी और उनकी सारी बहुत थी, आप में खूब रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। अजीजा ने मोहतरम, अब क्या हुआ, आप अजाब की आयतें पेश करने लगे। यहया अलैहिस्सलाम बैठे, कसीर हुजूम है। अब आप क्या बोले मालूम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, अभी अभी मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर जिब्राइल ने खबर दी कि जहन्नम में अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा पहाड़ बनाया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर बोले, ज़करिया बयान करते हैं अलैहिस्सलाम कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे खबर दी कि जहन्नम में बहुत बड़ा पहाड़ है जिसका नाम सकरान है। उस सकरान पहाड़ के नीचे एक वादी है, उस वादी का नाम गज़बान है। आप अश्कबार हो रहे थे, रोते हुए लोगों में बयान कर रहे थे कि उस सकरान पहाड़ के नीचे एक वादी जिसका नाम गज़बान है, यानी बहुत ज्यादा गुस्से वाली वादी, और अल्लाह के गजब से वो गज़बान पहाड़ी बनाई गई। और उस गज़बान पहाड़ में, उस वादी में ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि वो गड्ढे की जो मसाफत है, उसका जो सफर है 200 साल मील का सफर है। अगर उस वादी में किसी को फेंक दिया जाए तो उन्हें नीचे गिरते 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 200 साल होने के बाद उसकी तल पे जाके पहुंचता। ये मतलब है एक सकरान पहाड़, उस पहाड़ के नीचे एक वादी जिसका नाम गज़बान, उसकी जो मसाफत 200 साल की मसाफत है। 200 साल के बाद उसका तल मिलता बंदे को जब उसको डाल दिया जाए। तो आपने कहा उस वादी के अंदर जो गज़बान अल्लाह के गुस्से से बनाई गई, उस वादी में बड़े बड़े अंगार के शोलों के ताबूत है, और उस ताबूत में आग से बने हुए बेड़ियां और जंजीरें हैं। और अल्लाह ताला उन ताबूत में उस सकरान नामी पहाड़, उस पहाड़ के अंदर 200 साल मसाफत वाली अल्लाह के गुस्से से बनाई हुई गज़बान नामी वादी, और उस नामी में शोलों के आग से बने हुए ताबूत, और उस ताबूत में अंगारे बेड़ियों से बने हुए और जंजीरें, उन जंजीरों में अल्लाह के नाफरमान और गुनहगार बंदों को डाल दिया जाएगा। वो बेड़ियां, वो जंजीरें पहनाई जाएंगी। जब ये बयान करना था, हजरत यहया अलैहिस्सलाम चादर उठाए और अल्लाह की पनाह बल्कि गज़बान से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, सकरान से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ बोलकर भाग निकले। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम देख लिए कि यहया भाग रहे हैं, आपकी बीवी भी देख ली। अब कहा कि बच्चा कहाँ जा रहा है, नौजवान बच्चा है। अब हजरत ज़करिया नबी है, उनकी बीवी वालिदा वलिया है, दोनों अपने बच्चे के पीछे भागना शुरू कर दिए। यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, जंगल तलाश कर लिए, यहया अलैहिस्सलाम नहीं मिले। अब परेशान हो गए, बच्चा कहाँ चला गया। गज़बान से पनाह, सकरान से पनाह बोलता हुआ बच्चा चला गया। अब एक चरवाहा जंगल में मिला। अब उस चरवाहे से कहे कि देखो, तुम यहया को देखे क्या, एक बच्चे को, नौजवान को जो यहाँ से भाग रहा है। उस चरवाहे ने कहा, कहीं तुम यहया की बात नहीं कर रहे? हाँ, मैं यहया ही की बात कर रहा हूँ। तुमने देखा? तो हाँ मैं देखा, वहां पर बैठा हुआ है, वो एक बात कह रहा है कि उस वक्त तक कुछ भी न खाऊंगा न पीऊंगा जब तक मुझे मालूम न हो जाए कि मेरा ठिकाना जहन्नम है या दोज़ख है। नबी है, अल्लाह ने उनके लिए आला जन्नत बनाई, लेकिन ये उनके अंदर कैसी खशियत, कैसा तकवा, कैसा उनका ईमान जो भड़कता हुआ एक नूर की शक्ल में उभर रहा है। आप समझ गए कि हाँ मेरा बच्चा वहां पर है। चले गए दोनों, वालिदा वालिदे मोहतरम हजरत ज़करिया गए, जाकर बच्चा मिल गया। बच्चा रो रहा है, बिलक रहा है। वालिदा ने कहा, बेटे यहया, मैं तुम्हें उसका हक देती हूँ कि 9 महीने जो तुम्हारी माँ ने तुमको पेट में
रखा हिफाजत के साथ और अपनी छाती का दूध दिया। उस दूध का बेटे तुमको हक देती हूँ, बेटे मेरे साथ घर चलो, बेटे यहाँ पर ना बैठो। उनकी हालत देखकर दोनों रो पड़े। अब वो हजरत याहिया वालिदा की बात और वादा सुनकर घर आए। अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ अजीजान मोहतरम। उसके बाद घर आने के बाद ज़करिया अलैहिस्सलाम बोले कि जलाल, उनके अंदर वो अल्लाह की खशियत बहुत ज्यादा चढ़ गई थी। बोले कि जिस्म से गोदड़ी उतारो। वो उतार दिए, झुब्बा दिए ज़करिया अलैहिस्सलाम, झुब्बा पहन के आपकी वालिदा क्या की मसूर का शोरबा उनको दी, मसूर का शोरबा पी लिए। पीने के बाद नींद लग गई। जैसे ही सोना था कि गैब से आवाज आई कि ए याहिया, अल्लाह के घर के अलावा दूसरा घर तलाश कर लिए। ए याहिया, अल्लाह के पड़ोसियों के अलावा दूसरे पड़ोसी बना लिए। डर के उड़ गए और कहने लगे कि ये जुब्बा ले लो और मुझे अपनी गोदड़ी दे दो। जिद करने लगे। ज़करिया ने कहा कि अब नहीं, इसके अंदर अल्लाह की खशियत और अल्लाह का डर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब मेरे बच्चे को अल्लाह के हवाले छोड़ना है। लिहाजा वो गोदड़ी दे दिए, पहन लिए और इतनी इबादत करने लगे, अल्लाह की इतनी इबादत करने लगे कि अल्लाह को आसमान से एक फरिश्ता भेजना पड़ गया। इतना डूब जाते थे अल्लाह की इबादत पे, नहीं मुझे अल्लाह को राजी करना है, मुझे अपना ठिकाना मालूम करना है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या बनेगा। नबी है, कुछ जरूरत ही नहीं, लेकिन अजीजा ने मोहतरम फिर भी उम्मत को बताने के लिए अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम से ये काम कराए। फरिश्ते को भेजा, फरिश्ते को भेजकर बयान करने लगे कि ए याहिया, फरिश्ता आकर बोलता है अल्लाह ने तुम्हारे लिए बेहतरीन जन्नत तैयार कर रखी है, अल्लाह तुमसे राजी हो गया। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम का दिल इत्मीनान वाला बन गया, खुश हो गए। अब कहा कि मौला मेरी इबादत से तू राजी हो गया, अब मैं इबादत को छोड़ता नहीं, बल्कि जितनी इबादत करता था उससे ज्यादा अब इबादत करूंगा। अजीजा ने मोहतरम, ये दुनिया की जीनत में पड़े नहीं अंबिया अलैहिमुस्सलाम, औलिया अल्लाह ये दुनिया की जीनत में पड़े नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर उन अल्लाह के कलाम की आयतों को देखे कि अल्लाह को दुनिया में रहकर दुनिया की जीनत को ओढ़ना पसंद नहीं है, बल्कि अल्लाह को दुनिया में रहकर उससे मुलाकात की उम्मीद रखना है। बंदे को अल्लाह को पाना है और बंदे को दिल में अल्लाह की मोहब्बत दाखिल करवाना है। इसीलिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम औलिया अल्लाह दुनिया में रहे, लेकिन दुनिया का लिबादा नहीं पहने। एक बुजुर्ग कहते हैं कि तुम्हारी जो जिंदगी है एक बुर्ज की है, तुम एक ब्रिज पर खड़े हुए हो और ब्रिज पर कोई बसेरा नहीं बनाता, ब्रिज पर आ गया तो ब्रिज पार कर लेता। तुमको भी जो ब्रिज पर हो, तुम ब्रिज पार करना है, दुनिया से हटना है, आखिरत की तरफ बढ़ना है।